ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 + 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ x ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ 2 to 1.99। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ y। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ 2 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 1.99 ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਂਸਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1.99 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫੇਅਰ ਦਾ, ਆਂਦੇ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 5.1 ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ 5 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਆਏਗੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਸਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ y, ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ y ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ y ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, y + ਡੈਲਟਾ y ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, y + ਡੈਲਟਾ y। ਸੋ y ਤੇ ਡੈਲਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, y ਤੇ ਡੈਲਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, y ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ x ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਤੋਂ 1.99 ਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ x 2 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1.99 ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 2 ਤੋਂ 1.99 ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਲਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਮੰਨ ਲਓ 1.99 ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ x ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਦੀ। ਤੇ 1.99 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਈਜ਼ਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ 2 ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3.9 ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 1.99 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹਾਂ 2.99 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਲੋਜ਼, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਐਟ x = 2 ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਟ x = y = ਜਿੱਥੇ x ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 2 4 2 8 2 16 + 10 = ਆ ਗਿਆ ਜੀ 26। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡੈਲਟਾ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, dy/dx ਇੰਟੂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ dy/dx ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ x ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1.99। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਲਟਾ x ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 1.99, ਜਿਹੜੀ 1.99 ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, x + ਡੈਲਟਾ x। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਸਮ ਸੀ, x + ਡੈਲਟਾ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ x ਕੀ ਆਊਗਾ, 1.99 - x, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ x = 1.99 - 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -0.01। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ x।
ठीक है जी। ਹੁਣ dy/dx फाइंड करना जी, इत्थों हैगा dy/dx, dy/dx किहदे कोल आ गया जी 4x³ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 डेल्टा y इज़ इक्वल टू dy/dx आ गया 4x³ इंटू डेल्टा x। डेल्टा x सी कि जी वैल्यू पहला अपन ली तो बाद ओरिजिनल वैल्यू साढ़े को जो आई वो कितना चेंज है, कितना फर्क है, वो डेल्टा x साढ़े को सी। ठीक है, बस हम वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी, साढ़े को डेल्टा y आ जाएगा 4 इंटू x जगह पर आप की सबस्टिट्यूट करना, जो x की वैल्यू साढ़े को दी हुई है 2। डेल्टा x साढ़े को आ गया -0.01। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा कितना साढ़े को आ गया जी इत्थे 32 मल्टीप्लाई -0.01 तो इन्हां दोनों जो मल्टीप्लाई करांगे आपस दे विच असीं साढ़े को वैल्यू आ जाएगी -0.32 आ जाएगी। ठीक है जी, यह साडा आ गया जी डेल्टा y। बस साढ़े को सारियां वैल्यू आ गई। हुण सारियां वैल्यूज़ नूं आपां सबस्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 दे विच ते y प्लस डेल्टा y किहदे कोल आ गया, y आया सी 26 तो डेल्टा y साढ़े कोल आ गया -0.32 तो आंसर आ गया जी 25.68। इसका मतलब कि जे आप 2 वैल्यू ली सी साड़ी y की वैल्यू 26 आती सी, बट जो आप 1.99 वैल्यू लवांगे तो साड़ी y की वैल्यू आ वो की आऊगी 25.68 आएगी। ठीक है, इस तरीके नाल इक्वेशन वाले सम जिहड़े वो सॉल्व करने हैं। सब तो पहला तुसीं ये देखना हुंदा कि वैल्यू पहला किहड़ी सी ते बाद च चेंज होकर वैल्यू की आई है। ठीक है, फिर तुसीं जो वैल्यू पहला सी उत्थों y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। साडा जो भी अप्रॉक्सीमेट चेंज आएगा वो y प्लस डेल्टा y के इक्वल होएगा। y की वैल्यू सीधी जो साडे को x की वैल्यू पहला लै रहे हैं उत्थों y की वैल्यू आप फाइंड ईजिली कर लेनी है। ये साडी पहला आई सी y, फिर डेल्टा y चेंज आया, ये कितना चेंज हैगा वो किवें फाइंड करना आ इक्वेशन तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx मल्टीप्लाई डेल्टा x। हुण ये डेल्टा x जी वैल्यू आ वो साडे कोल की होएगी कि वैल्यू पहला कितनी सी बाद कितनी आई, दोवां च की डिफरेंस हैगा वो असीं x प्लस डेल्टा x नूं ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल लिख के उत्थों डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, फिर कि तुहानूं पता डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन च सबस्टिट्यूट करना तो इत्थे ध्यान रखना इत्थे x की वैल्यू असीं उही लैनी है जो साडी पहला सी, x की वैल्यू 2 वो लैके फिर असीं डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर y प्लस डेल्टा y जगह करेंगे सबस्टिट्यूट, वो साडे कोल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट चेंज जो साडे इत्थे आया 25.68। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल तुहानूं मैं होर समझा दा नाल दी ही जिहदे विच सानूं उन्होंने दस्सिया नहीं है कि वैल्यू कित्थों चेंज हुई है, बट आपां वो किवें एक्स तो सिलेक्ट करना वो तुहानूं दस देना स्टार्टिंग। नैक्सट हम लिखिए जी कि साडे कोल f(x) हैगा 3x² प्लस 15x प्लस 5 दे इक्वल आंदे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो कि उपर 3.02 ते यूजिंग डिफरेंशिएशन आप यूज़ करके। हुण जे मैं तुहानूं कहां कि इत्थे फंक्शन च मैं 1 के उपर वैल्यू देखनी थी झट ही फाइंड कर लोगे x जगह 1 पुट करके, जे मैं कहां 2 उपर देखांगे झट ही फाइंड कर लांगे। बट प्रॉब्लम जी आ सानूं कित्थे होनी है जिथे उन्हें क्या होए कि फंक्शन की वैल्यू डेसीमल च फाइंड करो, इत्थे प्रॉब्लम आ गई ना 3.02 उपर किद्दां फाइंड करनी है। बस सम साडे यही प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने वाले है। पहला आपां डेसीमल की स्केयर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट फाइंड करना सीखिया सी, हुण यही सीखना है कि डेसीमल्स के उपर फंक्शन की वैल्यू किद्दां फाइंड करनी है। ठीक है, साडे कोल अप्रॉक्सीमेट जी वैल्यू होनी है वो किहदे कोल होनी, देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो किहदे कोल होनी है y प्लस डेल्टा y दी। बस y प्लस डेल्टा y के उपर साड़ी उत्थे वैल्यू होंदी सी उन्होंने सम्स विच इत्थे भी सेम y प्लस डेल्टा y की इक्वल ही होगी। y की वैल्यू डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। उस तो पहला असीं ते x ते डेल्टा x भी फाइंड करना। हुण देखो 3.02 के उपर तो वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता एग्जैक्ट, मतलब औखी फाइंड करनी। फिर मैं ये लागे एक वो नंबर डिसाइड करना है x जिहदे उपर मैं ईजिली फाइंड कर सकता, तो ये लागे वैल्यू मैंने 3 दिखती पई है। इस करके जो भी साडे को डेसीमल के लागे वैल्यू आएगी उन्होंने तुसीं x सैलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, कई बार तो उन्होंने क्या होंदा कि जिद्दां मान लो लास्ट सम च आपां कीता कि वैल्यू 3 2 टू 1.99 जा रही है, मतलब x साडा 2 हैगा तो डेल्टा x बाद आप 2 माइनस करके कर लेने। इत्थे कुछ नहीं किया, फिर आप वेरी क्लोज वैल्यू वो लैनी जिहदे उपर आप ईजिली फाइंड कर सकते फंक्शन की वैल्यू, वो आडी लैट कर ली x की वैल्यू 3। हुण x प्लस डेल्टा x नूं आपां लैना ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल दैट इज़ 3.02। इत्थों साडा डेल्टा x आ गया 3.02 माइनस 3 डैट इज़ 0.02। आ साडा आ गया जी डेल्टा x भी आ गया, डेल्टा x भी आ गया साडे कोल।
ठीक है जी। हुण y की वैल्यू फाइंड करिए, जी y की साढ़े को वैल्यू आएगी वो की आनी आ, फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करांगे 3 के उपर, जो आप लागे वैल्यू लई ना, ये अप्रोक्सीमेट जो क्लोज वैल्यू लई जिहदे उपर आप ईजिली फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साडा वाई जिहड़ा आ वो उस वैल्यू के उपर जो आंसर आएगा वाई होएगा। डेल्टा वाई आप किस तरीके फाइंड करना, जिवें लास्ट समझ किया डिफरेंशियल का यूज़ करके, ठीक है जी। हुण एट एक्स इक्वल टू 3 वाई किहदे कोल आएगा, एफ ऑफ 3 दे फंक्शन च आपां की पुट करना, जो साडे कोल एक्स की वैल्यू आपां लई आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ फंक्शन की वैल्यू की आती, वो साडा वाई आ जाएगा। कर लो फाइंड जी फंक्शन की वैल्यू। 9 3 27 प्लस 45 प्लस 5 इक्वल टू आ गया 50 77 आ गया। लो जी साडे कोल वाई की वैल्यू आ गई जी 77, ठीक है जी। हुण डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करिए। डेल्टा वाई हुंदा साडे कोल डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी एक्स का डेल्टा एक्स दोनों मतलब सेम ही होंदा है, ठीक है, कि चेंज इन साडे कोल जिहड़ा एक्स विच की चेंज आया। हुण डेल्टा एक्स साडे कोल वैल्यू तो है, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आपां फाइंड करनी है, डी वाई बाय डी एक्स ये साडे कोल किहदे कोल आएगा जी, डिफरेंशिएट करो आ गया 6x प्लस 15 दे, ये वैल्यू करो जी सबस्टिट्यूट इत्थे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स आ गया 0.02। हुण इत्थे एक्स की वैल्यू करांगे सबस्टिट्यूट आपां 3, ये आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 6 × 3 प्लस 15 इंटू 0.02। ये साडी जिहड़ी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करिए आपां इत्थे 18 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0.02, साढ़े को आ गया जी 18 × 33 मल्टीप्लाई 0.02। 33 नूं आपां 2 ना मल्टीप्लाई करांगे 66 आ जाएगा, ये आ गया 0.66, ये साडा आ गया जी डेल्टा वाई आ गया, ठीक है जी। हुण दोनों जी वैल्यूज़ ने उन्होंने आपां सबस्टिट्यूट कर देंगे इत्थे, ते अप्रोक्सीमेट वैल्यू साडी की आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट साडी वैल्यू आ गई जी वाई साडे कोल आ गया जी 77, डेल्टा वाई आ गया 0.66, आंसर क्या जी 77.66। देख लो डायरैक्ट आप जो सॉल्व करते थोड़ा तुहानूं मुश्किल आनी सी, 3.02 का इत्थे स्क्वेयर करके मल्टीप्लाई करना, इस तरीके नाल देखो सम जिहड़ा कैलकुलेशन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तुसीं बस ये देखना कि पहला ये वैरी क्लोज चैक करनी वैल्यू जिहदे उपर आपां ईजिली फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते, उन्होंने आपां एक्स लै लेना। फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जी कि होनी वाई प्लस डेल्टा वाई दे, वाई साडा की होना जो आप लैट की ना वैल्यू वो फंक्शन पुट करो, जो आंसर आएगा वो साडा वाई आ जाना। देख लो आ वाई आ गया। डेल्टा वाई तुहानूं पता ही है, हुण डिफरेंशिएट करके आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आप डेल्टा वाई जो फाइंड करना, फिर दोवां नूं प्लस कर देंगे, साडे कोल आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। हुण तुहाडे होर दो सम करते हैं जिहदे विच वॉल्यूम सफेयर वगैरह सरफेस एरिया वो यूज़ होएगा। देखिए नेक्स्ट सम जी, इफ द रेडियस ऑफ अ सफेयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर with an error of 0.03 meter, find the approximate error in calculating surface area। आंदे कि जे मान लो रेडियस असी मेजर किया 9 मीटर बट वो एरर पाई गई 0.03 मीटर, मतलब हो सकता कि रेडियस जोड़ा सी वो 9.03 मीटर सी बट असी 9 मीटर ही मेजर किया, ठीक है। एरर 0.03 मीटर की एरर आई है। फिर दसो कि सरफेस एरिया के कितनी एरर आएगी, ठीक है। यदा बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सब तो पहला तो जी साडे कोल पहला वैल्यू आ उन्होंने आपां बेटा एक्स मनना इत्थे, ठीक है। साडा इत्थे लैट कर लिया कि एक्स की हैगा आ, सफेयर का साडे कोल रेडियस हैगा सफेयर का, एक्स मान लो चाहे आर मान लो, कोई नहीं आर मान लो, इत्थे आपां इहनूं आर मान लेने, रेडियस आर साडे कोल की हैगा 9 मीटर। जिहड़ी एरर आई है ना, एरर कितनी आई है 0.03, इनू असी मनना रेडियस एरर आई है डेल्टा आर मान लेना, ये कहना 0.03, ठीक है। चाहे तुम डेल्टा एक्स मान लो या डेल्टा आर मनना ज़्यादा वधिया, क्योंकि आप रेडियस विच एरर आई उन्होंने पर डेल्टा आर नाल डिनोट करांगे, ये साडा हैगी एरर, ठीक है जी। हुण असीं वेखना सरफेस एरिया दे विच कितनी मतलब एरर आएगी यूजिंग डिफरेंशियल। सरफेस एरिया किहदे कोल हुंदा जी 4πr², ते जिहड़ी एरर आपां चैक करनी आ वो साडे कोल किहदे कोल होएगी, एरर इन सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू
ds/dr इंटू डेल्टा आर। आ साडे कोल फॉर्मूला जी जिहदे विच भी सरफेस एरिया की गल होए जां वॉल्यूम की गल होए, उन्हें कहा चैक करो वॉल्यूम च कितनी एरर आई। तुसीं की करना, वॉल्यूम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू रेडियस जां जिहदे भी रिस्पैक्ट टू क्या होए उन्होंने हाइट दी होए जां रेडियस की गल की होए, तो नाल जिहड़ी उत्थे एरर आई आ उहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कई बारी कहते होंदे आ कि रेडियस सफेयर का 9 मीटर सी, बट असल च आपां मेजर 9 मीटर कीता है साडे कोल सी 9.2। ਇਹਦਾ मतलब एरर कितनी आई, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा साड़ी होएगी एरर होएगी। ठीक है, इदा ही वो डेल्टा आर आप मन के चल पैनी। इसे डेल्टा 0.03 आ, आर साढ़े को आ गया 9 मीटर। ये साढ़े को सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया देखना कि ये एरर कितनी आऊगी, वो किमें करना, सरफेस एरिया डिफरेंशिएट कर विद रिस्पैक्ट टू आर, नाल आप डेल्टा आर मल्टीप्लाई करना। आर फॉर्मूला बस इतने आप डिफरेंशिएट कर देंगे जी, d/dr सरफेस एरिया की है जी 4πr², डेल्टा आर कितना 0.03, 4π डिफरेंशिएट किया कि आ गया साढ़े को 8πr आ गया, 8 इंटू पाई नूं पाई रहन दो, आर साढ़े को जी 9 दे, 8 9 आ गया 72 पाई मल्टीप्लाई 0.03, इनू 0.03 ना मल्टीप्लाई करांगे साडा आंसर आ जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वेयर। ये साढ़े को आ गया जी, इन्ना जिहड़ा आ वो सरफेस एरिया में चेंज आएगा, ये साडी वैल्यू आई जी कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, साढ़े को 2.16 पाई मीटर स्क्वेयर का चेंज आएगा। ठीक है, सिमिलरली जो वॉल्यूम की गल की होंदी तो आपां की करना सी, वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट टू आर आप डिफरेंशिएट करके नाल डेल्टा आर नूं मल्टीप्लाई कर लेना सी। ठीक है जी, इस तरीके नाल सम इस नाल सॉल्व करें। नैक्सट सम करते हैं, लास्ट सम। नैक्सट सम कह रहे जी, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। कहते कि दसो कि क्यूब के वॉल्यूम की चेंज आऊगा जिहदी साइड एक्स मीटर आ, कॉज्ड बाय इनक्रीजिंग ऑफ साइड बाय 2%। जे कहते आप साइड में 2% चेंज कर दें दैन की वो चेंज आऊगा वॉल्यूम के। हुण देखो पहला साइड एक्स आ, फिर कितनी चेंज की उन्हें 2%, मतलब 2% चेंज जो की है, जो चेंज आई वो साडा की आ गया, उन्होंने आप एरर मान के चलांगे। ठीक है, साढ़े को साइड साइड साढ़े को हैगी आ इक्वल टू एक्स, दैन जो चेंज आया डेल्टा एक्स वो कितना जी 2% ऑफ एक्स का, कहते साइड में कितना चेंज करे 2%, तो 2% कितना आ जाएगा साढ़े को 0.02x, ये सारा डेल्टा एक्स आ गया जी। ठीक है जी, असीं ये चेक करना कि वॉल्यूम से कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम कि को एक्स क्यूब दे तो चेंज कितना आएगा साढ़े को डेल्टा एक्स, डेल्टा वी आप फाइंड करना ना, चेंज इन वॉल्यूम उन्होंने आप डेल्टा वी ना डिनोट कर सकते हैं, वो कि को आएगा dv/dx इंटू डेल्टा एक्स दे, dv/dx वॉल्यूम में कर लो डी डिफरेंशिएट, फिर डेल्टा एक्स ना कर दो मल्टीप्लाई, की आएगी डिफरेंशिएशन 3x² इंटू डेल्टा एक्स की है 0.02x। लो जी साढ़े को 3x² आ गया, इनू कर दो जी मल्टीप्लाई अगे, ये आप करांगे जी x² नूं असीं मल्टीप्लाई कर लांगे x के नाल, ये साढ़े को x क्यूब आ जाएगा, 3 नूं करांगे आ जाएगा 6, ये आ गया 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब। आ साढ़े को चेंज आ गया जी, है ना, बहुत सिंपल सम। उन्हें कहा जी साइड क्यूब की एक्स हैगी सी, जे आप 2% चेंज करते हैं साइड में तो वॉल्यूम से कितना चेंज आएगा। आप क्या ठीक है जी, साइड एक्स है जी, कितना चेंज की 2% चेंज की आप साइड, साढ़े को चेंज आ रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया, साइड में एरर आ गई साढ़े को कि 2% आप चेंज करनी है। 2% चेंज करने तो बाद कितना साढ़े को वॉल्यूम के चेंज आऊगा, आ देख लो फाइंड कर लिया आप पहला वॉल्यूम, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। ठीक है जी, तो इस नाल जिन्ने भी सम्स होंगे साइड क्यूब दे वॉल्यूम जां समथिंग कुछ सरफेस एरिया की गल की सेम यही लास्ट वाले तुहानूं 2 सम करवाए ये तुहाडे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, हुण बच्चे इहदे नाल साडा एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर खत्म होंदा है। नैक्सट असीं हुण चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना इनडेफिनेट इंटैग्रेशन। ठीक है, तो सैकेंड वॉल्यूम स्टार्ट करांगे। थैंक यू।